So the name of the set is Tinu, an electrician. The question is, Tinu, an electrician, repairs the certain electronic components. The bar graph given below shows the various electronic components he repaired in the last 4 weeks. The table given below shows the repair cost per component charged by Tinu. So we have signal devices 16, picture tubes 15, hybrid microcircuits 40, capacitors 20, and so on. And the cost is also given to us for repairing one signal device. He charges 2000 rupees. For one picture tube, he charges 1200 rupees, and so on. And some condition is given to us. It is known to us that in the first week, he repairs at most 5 of each type of electronic components. In the second week, he repairs at least 8 and at most 10 of each type of the components. In third week, he repairs at least 7 and at most 8 of each type of electric component. And in the last week, he repaired the minimum possible remaining number of electronic component of each type. So seems to be very basic set, ज़्यादा complicated feel नहीं आ रहा है. तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट इज द अमाउंट अर्न बाय टीनू इन फोर्थ वीक? मैक्सिमम व्हाट अमाउंट डिड टीनू अर्न इन सेकंड वीक? मैक्सिमम. तो यहां से ये पता चल रहा है कि हो सकता है सेट कहीं ना कहीं कंप्लीट ना हो रहा हो. मैक्सिमम मिनिमम की बात की है. In the first week, Tinu repaired 25 less electronic components than what he did in third week. Also, he repaired exactly 3 capacitors in the first week. Then what is the difference between the amount earned by Tinu in the first and third week? And last question, fourth one. In the second week, Tinu repaired at least 2 more electronic components of exactly 5 types than what he did in the respective type of electronic component in third week. Then for maximum, how many types of electronic components in the second week did Tinu earn at least 25% more than what he earned in the third week? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट लग रहा है, बेसिक से क्वेश्चंस लग रहे हैं. आप लोग यहीं एक बार पॉज करें, एक बार सेट को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें. सो आई होप आपने देख लिया होगा सेट एक बार. सो लेट अस ट्राई टू फिगर दिस आउट कि हम क्या क्या कंपोनेंट्स फिल कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है उसके बेसिस पे. सो इन द फर्स्ट वीक ही रिपेयर्स एट मोस्ट 5. सो इन फर्स्ट वीक द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन हैव इज 5. सो मैक्सिमम 5, राइट. सो द वैल्यूज दैट आर अलाउड इज 0, 1, 2, 3, 4 and 5. इनमें से कुछ भी हो सकता है. मैक्सिमम इज 5. इन द सेकंड वीक एटलीस्ट 8 and at most 10. So the values allowed to us are 8, 9 and 10. In third week it is 7 and 8 only, right? And in the fourth week as minimum as possible. So we need to minimize this value, right? Ye condition is simple. Now I have made it stable. So by combining these two charts, basically bar graph and the information given to us, I made this table. So overall in a period of 4 weeks, he repaired 14 signal devices, that is SD, right? 16 SD. Now I need to distribute the signal SD in 4 weeks according to the condition given to us. Now 16 है ना, यहाँ पर मिनिमम हमें 7 देना पड़ेगा या 8 देना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली वीक 2 में कुछ आएगा और वीक 1 में कुछ आएगा. But one thing which we are sure is week 4 में 0 हम definitely दे सकते हैं. Why 0? Because we need to minimize this value. We need to minimize this value. 16 तो हम easily 1 to 3 week में cover कर देंगे. अच्छा, as of now I am not deciding कि first week में कितना जा रहा है, second में कितना जा रहा है. But yes, for fourth week we can decide. It has to be 0 only because we need to minimize this value and that can be done. Easily हो सकता है 16 का management. The same goes for PT as well. We need to distribute 15 over the 3 weeks. और 15 उसमें we have only one case. We have to allot at least 7 over here, at least 8 over here. ये तो minimum देना ही देना था. That makes it 15. So we can say that in week it was 1, it was 0, and in week 4 also it was 0 only. बहुत easily हम कह सकते हैं ये चीज. Now let us move to HMC. We have 40 number available. Now 40 में यदि हम यहाँ maximum भी देंगे, अच्छा ठीक है, we need to minimize 4. So that means we need to maximize the value over here. इनको maximize करेंगे तभी ये minimize आएगा. 40 यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 8. यहाँ पर वी कैन गिव 10 मैक्सिमम. यहाँ पर मैक्सिमम अलाउड वैल्यू इज 5 ओनली. सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 23. स्टिल 17 आर रिमेनिंग दैट हैज टू बी रिपेयर्ड इन लास्ट वीक ओनली. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. वो करना पड़ेगा 17, राइट? देन फॉर कैपेसिटर द वैल्यू इज 20 गिवन टू अस. 20 में से आई थिंक वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट दिस 20 कैपेसिटर इन द फर्स्ट 3 वीक्स ओनली. सो वीक 4 में डेफिनेटली हम 0 पे जा सकते हैं. Now in PCB we have 33. तो यदि हम हाईएस्ट वैल्यू भी देते हैं बच्चों, यहाँ पर 8 भी देते हैं, यहाँ पर 10 भी देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 5 भी देते हैं, तो भी 23 कवर होता है. स्टिल 10 आर रिमेनिंग. वो यहाँ पर जाएंगी. एंड एट लास्ट वी हैव IC which are 22 in number. तो 22 आई थिंक अगेन
22 में से हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? यदि हम 8, 10 और 4 भी करें तो 22 हम फर्स्ट 3 वीक्स में इजीली कवर कर सकते हैं। तो वीक 4 में डेफिनेटली इट हैज टू बी 0। सो वीक 4 की सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। फॉर वीक 1, 2 एंड 3 सम ऑफ द वैल्यूज हमने डिसाइड कर ली हैं, कुछ अभी तक पता नहीं चल पाई हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन किस तरह के हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट अर्न्ड बाय टीनू इन फोर्थ वीक? सो इन फोर्थ वीक Tinu repaired 17 HMCs and cost per HMC was 4,500, which is I think 76,500, and he repaired 10 of PCBs and the repairing cost per PCB was 1,000 rupees, so that is 10,000. So the total cost comes out to be 86,500 rupees. So that is the answer to first question. Second, now we need to maximize the amount that Tinu earned in second week. उसको मैक्सिमाइज करना है। अब देखिए मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव 16 ओवर हियर। यहां पर कंडीशन वाज मैक्सिमम 5, हियर इट वाज 8 to 10, हियर इट वाज 7 to 8, राइट? नाउ वी नीड टू मैक्सिमाइज द अर्निंग इन वीक 2। ठीक है, लेट अस अलॉट 10 ओवर हियर, बट वी कैन नॉट अलॉट 10। व्हाई? 10 यहां देते ही यहां पर हमारे पास 6 ही रह जाएगा, बट वी नीड टू हैव एटलीस्ट 7 इन थर्ड वीक। सो मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन गिव ओवर हियर इज 9 और यहां से 7 आ जाएगा। दैट मेक्स इट 16। वीक 1 में हम 0 ले लेते हैं because we need to maximize week second. Simple, right? Now for week 2, for PT and HMC we are sure about the values. कैपेसिटर की बात करते हैं, so we have 20 कैपेसिटर। हम यदि यहाँ पर 10 देते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, यहाँ पर 8 भी देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी 2 दे सकते हैं। इजी सा केस है कुछ। आई एम फोकसिंग ओनली ऑन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू फॉर वीक 2। वीक 1 और 3 में कुछ भी जा रहा हूँ, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। For PCB, we already have the value as 10, and for IC again we have 22, so we can easily allot 10 over here. 10 यहाँ पे देते ही 8 यहाँ पे दे दें, राइट? और यहाँ पे 4 या 5 दे दे अकॉर्डिंगली, यहाँ पे 8 या 7 दे दे, तो इजीली हो सकता है। इट इज इजीली मैनेजेबल, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सो we need to maximize the amount earned by Tinu in second week. Now let us calculate the amount. So in second week for ST, 9 into 2,000, that makes it 18,000 rupees. Then we have 8 into 1,200, which is 9,600 rupees. Then 10 into 4,500 is 45,000 rupees. Then we have 10 again into 1,500, then 10 again into 1,000, and then 10 again into 500. So calculation is not that difficult for us. बहुत easy values दे रखे, so that is 15,000, that is 10,000, and which is this is 5,000. So कितना होता है total? So 45 and 15 is 60, 70 is 75, and 18 is 93, and 9,600 also. So 1,02,600 is the correct answer. ये बहुत easily solve होता है. Moving to next question. In first week, Tinu repaired 25 less electronic components than what he did in the third week. बहुत अच्छा question है. In fact, इस set का ये मुझे एक decent question लगा. So in third week, he repaired suppose X plus 25 component. So in first week, he repaired X components only. So difference must be of 25. And he repaired exactly 3 capacitors in the first week. देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये डिफरेंस 25 को कैसे लेकर आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, this is possible only when we allot the value of all the components to be 7. We need to minimize the difference. See, the point is, यहां पर हम maximum 5 दे सकते हैं, यहां पर हम 7 या 8 में से कोई वैल्यू दे सकते हैं, राइट? एक बार मैं आपको समझाने के लिए 8 वैल्यू देके एक बार चेक करवाता हूं। सपोज मैंने यहां पर 8 वैल्यू दिया, यहां पर भी 8 दिया, और यहां पर भी लेट से 8 दे दिया, राइट? अब यहां पर मुझे द कंडीशन वाज आई थिंक फ्रॉम 8 to 10, तो यहाँ पर हम 8 भी देंगे तो चलेगा, यहाँ पर हम 0 दे देंगे, यहाँ पर 7 नहीं दे सकते, तो यहाँ पर डिफरेंस 8 का आ जाएगा। यहाँ पर वी ऑलरेडी हैव द डिफरेंस एज 7, वीक 1 और वीक 3 में डिफरेंस ऑफ 7, यहाँ वी ऑलरेडी हैव द डिफरेंस एज 3, यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव द डिफरेंस एज 5, यहाँ पर द डिफरेंस इज ऑलरेडी 3। एक बार इतना ही कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 15, 20, 26, जबकि हमें ओवरऑल 25 करना था, और अभी तो एक वैल्यू रिमेनिंग है जिसका डिफरेंस डेफिनेटली और बढ़ने वाला है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट हमको डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, तो विल ट्राई टू गिव 7 इज द वैल्यू। जहां भी पॉसिबल है वीक 3 में हमको 7 देने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेट अस फोकस ऑन दैट।
एक बार सारी वैल्यूज 7 हम रख सकते हैं कि उस पर फोकस करते हैं, तो द रिमेनिंग वैल्यूज जो भी रिमेनिंग है हम उन पे देखते हैं क्या दिया जा सकता है. सो इफ आई अलॉट 7 ओवर हियर, राइट, एंड आई नीड टू मिनिमाइज दिस डिफरेंस. यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पर वी कैन गिव 8 और 9 और 10, कुछ भी हम दे सकते हैं. But no, 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 no. I think 8 and 9 is the only possibility because total 16 units are there. यहाँ पर 8 देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 देते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा. ठीक है, तो केस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं. ठीक है, so here if we write the difference, so it can be either 6 or 7. 6 or 7 में से कोई भी डिफरेंस हो सकता है. Here in second case for PT the difference is 7 for sure. Here it is 3 for sure. This is fixed, right? Now we have 3 capacitors, so we need to divide 17. अब 17 को भी in case यहाँ पर हम 7 लेते हैं तो we can have 10 over here. In case we take it to be 8, we can have 9 over here. So the difference could be of either 4, 7 और 3 का difference या तो 4 का हो सकता है या 8 और 3 का difference 5 का हो सकता है. Here we are having a difference of 3 and we have 22 capacitors. Now 23 we need to divide it among 3 weeks only. तो यहाँ पर यदि हम 7 लेते हैं बच्चों, so here we can have 10 और 5 यहाँ पर दिया जा सकता है. So the difference could be of 2. यहाँ पर यदि हम 8 लेते हैं, अच्छा 7 लेने के बाद यहाँ पर 9 लेते हैं तो 16 हो गया, तो यहाँ पर 6 नहीं दे पाएंगे, so this is not possible. और यहाँ पर यदि हम 8 लेते हैं बच्चों, so we have covered 14 are remaining. 14 में से हम यहाँ पर 10 देते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 9 देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा. So the possible values of difference are either 2, 7 और 5 का difference 2, और 8 और 5 का difference 3, और 8 और 4 का difference 4. ये सारी possible values है. अब एक बार चेक करते हैं definite values कितनी हो चुकी है. So we have 7, 10, 13. हमें 11 और करना है, उसमें से यहां पर मिनिमम 6 आएगा, यहां पर मिनिमम 4 आएगा, राइट. तो हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज कैसे करें? यहां से हमको डेफिनेटली पता चल रहा है कि हमें 7 ही देना चाहिए, 8 तो कहीं पर भी नहीं देना चाहिए. ये डेफिनेटली हमको यहां से पता चल गया है. ठीक है, अब ऐसा है तो नाउ लेट अस चेक फॉर द डिफरेंस. अब कितना डिफरेंस हो रहा है? सो 7 and 1 डिफरेंस इज ऑफ 6. डिफरेंस को मिनिमाइज करते हैं. 7 and 0 डिफरेंस ऑफ 7. अच्छा यहाँ पे 7 भी ले सकते थे डिफरेंस, बट देन वी नीड टू मिनिमाइज दिस वैल्यू. ये 25 को एक्सीड कर रहा है. 8 and 5 डिफरेंस ऑफ 3. 7 and 3 डिफरेंस ऑफ 4. कितना हो चुका है अभी तक? 13, 16, 20, 23. अब यहाँ पे 2 ले तो ही 25 हो पाएगा, तो 7 और 5 लेना पड़ेगा. तो बच्चों ये लग रहा था कि बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, बट देन हमें डेफिनेटली पता चल चुका है कि मिनिमम वैल्यू जो 7 है वही देने से काम चलेगा. हम उससे बड़ी वैल्यूज अलॉट नहीं कर सकते हैं इन वीक 3. ऐसा है. then the question is, then what is the difference between the amount earned by team in first and third week? So we need to focus on the difference. So here the difference of 6 units, and per unit the amount is of 2000 rupees. So the difference comes out to be 12,000. 7 into 1200 का difference है per unit का, तो that makes it 8400. 3 into 4500, so that is I think 13,500. Then 4 and 1500 is how much? 6,000. Then 3 and 1,000 rupees per unit is 3,000. And last 2, and the difference is of 500 rupees per unit, so that makes it 1,000. So we need to, calculate the total of this value. So I think that comes out to be 12,000, 18,000, 22,000, 22,000, and this is 30,400 and 13,500. So 43,900 is the value. So first option is the correct one. So ये एक decent question था जहां में हमें चेक करना था कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या नहीं हो सकती हैं. And moving to last question. In the second week, Tinu repaired at least 2 more electronic components of exactly 5 types than what he did in the respective type of electric component in third week. Or exactly 5 types. ठीक है. So there are 6 type of components given to us. So first of all, let us focus on कि वो कौन से 5 टाइप हो सकते हैं जहां पर सेकेंड वीक और थर्ड वीक का डिफरेंस exactly 2 का आ रहा हो. Now see, PT is definitely not that component. यहाँ पे तो definitely 1 का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पर we have 2 का डिफरेंस. So yes, this is countable. ये भी हम काउंट करेंगे.
एंड इनफैक्ट रिमेनिंग सब काउंट करना पड़ेगा, तभी वो 5 हो पाएगा, राइट? हमको एक ही एलिमिनेट करना था, एंड दैट इज पीटी, दैट वी आर श्योर ऑफ दिस, राइट? नाउ यहाँ पे 16 करना है, तो दैट इज 7 एंड 9, अगेन डिफरेंस 2 का आ गया, so yes this is countable. Now 20 करना है, so we can have it to be 8 or 10, or we can have it to be 7 or 9, दोनों चलेगा। अगेन ये काउंट किया जाएगा, एंड 22 अगेन ऑलमोस्ट द सेम केस, वी कैन हैव इट टू बी 8 और 10, और वी कैन हैव इट टू बी 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, तो ये भी काउंटेबल है। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स जिसमें हमको ये डिफरेंस मिल रहा है 2 का। देन फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन सेकंड वीक डिड टीनू अर्न एटलीस्ट 25% मोर? तो ठीक है, हमें इसमें अमाउंट कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है, वी कैन सिंपली फोकस ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिपेयर, उसका परसेंट यदि 25% ज्यादा है, अमाउंट डेफिनेटली होगा। सो हियर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 2 मोर ऑन 7, कितने ज्यादा है वीक 2 में? 2, कितने पे? 7 पे। सो यस दिस वैल्यू इज डेफिनेटली मोर देन 25%, दिस वी आर नॉट काउंटिंग। 2 on 8 again is exactly 25%, and at least 25% बोला गया, तो that again is countable, इसको भी हमको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 10 ले या 7 9 ले, दोनों में 25% से ज्यादा का डिफरेंस है, एक में exactly 25%, एक में 25% से ज्यादा है, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और ये भी exactly 25% हो रहा है। यहाँ पे कितने कंपोनेंट एक्स्ट्रा हैं? 2 on 8 which exactly is 25%. so 5 केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पे आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दैट वाज अबाउट दिस सेट। आई होप ये सेट आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये सेट बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं था, दिस वाज ऑफ इजी कैटेगरी। आई थिंक एग्जाम में ये आपको अराउंड 10 to 12 मिनट्स के अंदर पूरा सेट करना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।